গুড আফটারনুন স্যার। হ্যাঁ, গুড আফটারনুন। একটু ফোনগুলো মিউট করবেন কিছুক্ষণ। সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি ফোনটা একটু মিউট করে রাখতে। যাকে আমি রিকোয়েস্ট করবো তখন সে আনমিউট করে যাবে। সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করছি ফোনটা মিউট করার জন্য। কাইন্ডলি ফোনগুলো একটু মিউট করে রাখবে। ওকে, গুড আফটারনুন এভরিবডি। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং এর ফার্স্ট ব্যাচ অনলাইনে হবে, শুরু হচ্ছে। তার ওরিয়েন্টেশন এবং কাউন্সিলিং মিটিং আমরা শুরু করছি। তা আজকে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা এখানে উপস্থিত আছেন তাই সবাইকে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি। যারা আছেন তাদের নাম আমি একবার বলছি: পাপাদিত্য আদক, স্নেহাশিস কুমার, অনিমেষ মণ্ডল, প্রসেনজিৎ বসাক, অর্পিতা দাস, গোবিন্দ সাহা, দেববাণী ভট্টাচার্য, প্রিয়াঙ্কা সরকার, অপূর্ব কুন্ডু, কুণাল কুমার বাগচি, পল্লব মণ্ডল, অরূপ দাস, সজল পাল, সুরজিৎ দাস এবং পবিত্র দাস। আজকের মিটিংয়ে 15 জন আজকে প্রেজেন্ট আছেন। অ্যাকচুয়ালি ডিজিটাল মার্কেটিং এই কোর্স আমরা শুরু করছি, ইন্টারেস্টিং কোর্স। কি কি কভার হবে ডিজিটাল মার্কেটিং এ আমি একটা ছোট্ট ব্রিফিং আপনাদেরকে সবাইকে দিচ্ছি। নাম্বার 1, এই ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সে আমরা যেগুলো আমরা শিখবো তার মধ্যে হচ্ছে ভেরিয়াস ডিজিটাল মার্কেটিং টুলস এন্ড প্ল্যাটফর্মস, and exposure of search engine optimization, social marketing, social media marketing, Facebook marketing সেটা কিভাবে করতে হয়, video editing and marketing, 2D graphics creation, various digital marketing strategies, other digital marketing platform like website development, e-commerce marketing, Google based digital marketing products like Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense, digital marketing procedure and rules to make an effective communication through digital medium. Hello. As a digital professional, understand how to make a digital advertisement like Facebook ad, LinkedIn ad, website ad, and productive use of YouTube ads, YouTube channels, and YouTube videos, and how to active monetization. Finally, get skilled in various tools of digital marketing to build a trust relationship with your customers. এটার সঙ্গে প্রজেক্ট থাকবে, ল্যাব সেশন থাকবে and পার্সোনাল গ্রুমিং থাকবে। তো ওভারঅল আমি একটা কভারেজ বললাম যে এই কভারেজে ডিজিটাল মার্কেটিং এ আমরা সবকিছু আমরা করব। তো আমি ঠিক আছে, তুমি গুগল দিয়ে করো, আমি মিটিং আইডি ফেলে করেছি। কাইন্ডলি একটু মিউট করবেন। হ্যালো, কাইন্ডলি একটু মিউট করবেন। তো আমরা শুরু করবো। তো আমাদের মধ্যে আজকে এখানে আমাদের সিও পিএল স্কিল একাডেমি এন্ড অ্যাপ্লিকেশন আমরা একসঙ্গে যৌথভাবে এটা করি। তো আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সিও শ্রী কল্যাণ দেবনাথ স্যার, আরো আছেন এখানে সকলে। আমি এক এক করে ইন্ট্রোডিউস করছি। তা প্রথমে আমি আমাদের সিও স্যার কল্যাণ দেবনাথ স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে স্যার আপনি আপনি কিছু ওদের জন্য বলুন স্যার। গুড মর্নিং। কেউ কেউ হয়তো ফোনটা এখনো মিউট করেননি, অনুগ্রহ করছি ফোনটা মিউট করে কথা বলুন। গুড মর্নিং টু অল and good morning Dr. Sakir Ali. Good morning. Good morning Sakir Ali sir. So welcome to our first program. আমি বাংলা এবং ইংরেজি দুটো মিলিয়ে বলবো কারণ ইন্টার প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, so Dr. Ali, you may understand little bit. So that's all, you know. So we can gradually go for an align to the entire thing. Welcome to this program. এই প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। হোয়াট ইজ ডিজিটাল, এর থেকে বোধহয় এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, এই সময়ে ডিজিটাল মানে কি আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। মানে ডিজিটাল লিটারেসি হ্যাজ গন টু এ ভেরি লার্জ এক্সটেন্ট অ্যান্ড রিচ দি ইন্টেরিয়র পার্ট অফ দি কান্ট্রি। মানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভেতরে ছড়িয়ে গেছে ডিজিটাল লিটারেসির ব্যাপারটা। আজকে স্কুল লেভেলে মানে ক্লাস 4-5 এর বাচ্চারা বলে তুমি কি করছো, হোয়াট ইউ আর ডুইং, he says that I am doing online learning. So it has gone to the extent যেখানে আমরা অনলাইন লার্নিং বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটা যেটা আগে আমরা ভাবতে পারিনি, it has gone to a deep extent. টিভি খুললে আপনারা দেখতে পাবেন যে সবাই কিন্তু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকেও টিভিতেও ইউজ করতে চেষ্টা করছে। তো এই যে অবস্থার মধ্যে আলটিমেটলি মার্কেটিং, সেলস এন্ড মার্কেটিং যেটা আগে ফিজিক্যাল মোডে হতো সেটা অনেকটা আজকাল কিন্তু ডিজিটাল মোডে হচ্ছে। আমরা কিন্তু আমাদের সমাজের চারপাশে if you search around the environment, we'll find out we are always hit by digital marketing content.
আমরা মোবাইল খুললে প্রচুর SMS পাই, আমাদের যাদের ইমেল আছে ইমেলে প্রচুর আমাদের ইমেল ঢোকে মার্কেটিং অফ প্রোডাক্টস অফ সার্ভিসেস। তারপরে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে আমরা দেখতে পাবো প্রচুর অনেক জিনিস ঢুকছে, অনেক সময় আমরা বিরক্ত হই, but as an individual we'll find out that quite often we try to visit those places. আমাদের কাছে লিংক এলে পরে আমরা লিংকটা ওপেন করে জানতে চেষ্টা করি। ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম সাংঘাতিক ছড়িয়ে গেছে আজকে, মানে ইফ আই ওয়ান্ট সামথিং আমি অ্যামাজনে ক্লিক করব বা ফ্লিপকার্টে ক্লিক করব অর এনি আদার ই কমার্স প্ল্যাটফর্মে ক্লিক করে আই ক্যান উই ট্রাই টু অ্যাকচুয়ালি গেট আওয়ার নিড স্যাটিসফাইড। মেডিসিনস এমন একটা জায়গায় গেছে, মেডিসিন আজকাল অনলাইনে ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম মেডিসিন বিক্রি হচ্ছে। তো এই যে আমি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান এলিমেন্ট অফ এ সোসাইটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এভরি মোমেন্ট উই আর হিট বাই ডিজিটাল মার্কেটিং, তাই তো? অনেক সময় বিরক্ত হচ্ছে, অনেক সময় কিন্তু আমাকে হেল্পও করছে। সো ইট ইজ নট দ্যাট আমি বিরক্ত হচ্ছি। সো ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ গোয়িং টু বি দি নিউ থিং ইন দ্য নিউ নর্মাল। সুতরাং এই অবস্থাতে দাঁড়িয়ে যখন আমরা দেশবাসী যখন আমরা শিখতে চেষ্টা করছি, জানতে চেষ্টা করছি, ট্রাইং টু ইউজ, যত ইন্টেরিয়রই হোক লোকেরা কিন্তু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। দিস ইজ দ্য রাইট টাইম যে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিংটা শিখি। আমরা অনেকে জানি যে if you ask that you want to make a career in sales and marketing, আমরা বলবো no we don't want to make a career in sales and marketing, কারণ এই গিয়ে ভিজিট করা, যাওয়া, মার্কেটে যাওয়া আমার দ্বারা পোষাবে না, আমার টেম্পারামেন্টে নেই। কারো যদি ফোনটা যদি সে থাকে কাইন্ডলি একটু মিউট করে দিন, একটু দেখে মিউট করে দিন, তাহলে আওয়াজ আসবে না। তো এই যে আমি হয়তো টেম্পারামেন্টালি নট অ্যালাইন টু মার্কেটিং অন এ ফিজিক্যাল মোড, কিন্তু আমি বাড়িতে বসে কিন্তু I can play very very active role in digital marketing. সুতরাং সমস্ত অর্গানাইজেশন আজকাল চাইছে ফ্রিল্যান্সার যারা ডিজিটাল মার্কেটিং হেল্প করবে। আমি বাড়িতে বসে I can earn, I can be a very important component of the sales and marketing channel of an organization. সে বড় অর্গানাইজেশন, মাঝারি, ছোট, সব অর্গানাইজেশন খুঁজছে, ঠিক আছে আমি কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম, তুমি এই প্রোডাক্টটাকে রুটে সেল করো, গেট সাম বিজনেস ফর আস, ইউ গেট এ শেয়ার অফ দ্য রেভিনিউ দ্যাট উই আর্ন। এই কনসেপ্টটি কিন্তু আজকাল সমস্ত এগোচ্ছে। তাই রাইট টাইম আপনারা এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন, আমরা এই কোর্সটা করছি, রাইট টাইমে আমরা জানতে পারবো। আমরা কোর্সটাকে এবার ডিজাইন করেছি যাতে আমরা বাড়িতে বসে সমস্ত শিখতে পারি। আমাদের সঙ্গে ডক্টর সাকির আলী আছেন, যিনি হায়দ্রাবাদ বেসড, তিনি ডিজিটোস বলে একটা কোম্পানি চালান। তো উনি জিনিসটাকে ওনার অর্গানাইজেশন থেকে জিনিসটাকে পুরো পড়ানো হবেন। ডিজিটোস ইজ এ কোম্পানি হুইচ ইজ ইনটু ডিজিটাল মার্কেটিং ফর কোয়াইট লং টাইম। তো এই কোম্পানি কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিংই করে। সো ভেরি ভেরি ওয়েল ভার্সড ইন ডিজিটাল মার্কেটিং। সো company has got the profession, so he is taking time now to teach you digital marketing. এর থেকে বড় অপরচুনিটি হতে পারে না, যেখানে যারা ডিজিটাল মার্কেটিং করছেন তারা আপনাদের শেখাবেন হোয়াট ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং, কিভাবে করতে হয়। একটু আগে মৈত্র বললো যে কি কি এলিমেন্ট পড়ানো হবে, যে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং থেকে শুরু করে ইমেল মার্কেটিং, ই কমার্স মার্কেটিং, তারপরে কিছু গ্রাফিক্স এর কাজও আপনাদের শেখানো হবে। এই সময়টুকুর মধ্যে আপনারা এর মধ্যে খুব নজর দিন, গুরুত্ব দিন, এবং শেষ দিকে আমাদের কিছু অ্যাসাইনমেন্ট প্রজেক্ট আপনাদের দেওয়া হবে, যাতে আপনার প্রজেক্টগুলো বাড়িতে বসে করতে পারেন। আমার মনে হয় গ্রেট লার্নিং অপরচুনিটি। এবং মানে ওয়ান্স ইউ কমপ্লিট দ্য কোর্স আমরা আপনাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করে উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু এঙ্গেজ ইউ সামহার। তো এই একটা অপরচুনিটি আপনারা নিন। ডক্টর সাকির আলী ইজ এ ভেরি ভেরি ভার্সেটাইল পারসন। খালি একটাই আমি বলি, যেহেতু মানে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন উইল বি হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ কম্বাইন্ড, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা হলে আমাদের কোঅর্ডিনেটর থাকবে, মাঝে মাঝে কোনো অসুবিধা হলে বলবেন, কোনো জিনিস বাংলাতে তর্জমা করে দেবে। বাট দেন মানে আই উইল অলসো রিকোয়েস্ট ডক্টর আলী just have a combination of Hindi and English both. The audience at the moment is fully Bengali speaking persons, but you know, in a situation where Bollywood has taken a great part of our life, I don't think Hindi learning will be great, any Hindi listening in Hindi will be any problem. So but আপনারা মনে রাখবেন হিন্দি ইংরেজি। I will try my level best. पूरी कोशिश करूंगा, पूरी शिद्दत से मैं कोशिश करूंगा कि मैं धीरे धीरे ही सही हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मैं बोलूंगा। और एडवांटेज ये है कि बंगाली चूंकि मैं समझता हूँ, इसलिए अगर कोई बंगाली में कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो मैं समझ लूंगा, बट मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट इन बंगाली प्रोबेबली।
রাইট রাইট একটু বুঝতে পারে, বলতে পারে, being Bengali. Great. Let us smile and acknowledge his Bengali Great. speaking. Great. হাততালি তো দিতে পারবো না, হাততালি দিতে পারবো না, but let us smile and acknowledge that he has spoken in Bengali. Thank you. Good enough. So আপনারা বুঝতে পারছেন যে বললে হিন্দিতে প্রশ্ন করবেন, বাংলাতেও প্রশ্ন করতে পারে, he will understand. আমাদের লোক থাকবে প্রত্যেকটা সেশনের সঙ্গে, try to communicate, কারণ ওনার থেকে শিখতে গেলে উনি যেই ভাষায় কমফোর্টেবল সেই ভাষাতে বলতে দিলে উনি অনেক ভালো বলতে পারবেন। সো দ্যাটস অল, আমি এর থেকে বেশি কিছু বলবো না। আপনাদের সঙ্গে আবার আমরা যোগাযোগ করবো মিডওয়েতে, কোন এক সময় আপনাদের সঙ্গে জানতে চেষ্টা করব। আপনারা ইতিমধ্যে পিএসএ গুরুকুল দিয়ে ঢুকেছেন, গ্র্যাজুয়ালি আপনারা পিএসএ গুরুকুল এই পেজটার মধ্যে আপনাদের যে ডিজিটাল পেজটা আছে সেখানে সব ইনফরমেশন পাবেন। উনি যদি কোনো ভিডিও দেন সেই ভিডিওগুলো ওখানে দেখতে পাবেন, উনি যদি কোনো ক্লাস নোট দেন সেই ক্লাস নোটগুলো ওখানে দেখতে পাবেন। সুতরাং আপনাদের এটা হচ্ছে আপনাদের পেজ, ইট ইজ ইউর পেজ, সো ইউ ট্রাই টু ইউ উইল গেট এভরিথিং দেয়ার, ওকে, গোয়িং ফরওয়ার্ড। আর এখানে বাপ্পাদিত্য আছে, বাপ্পাদিত্য একটু পরে কথা বলবেন। সো বাপ্পাদিত্য অ্যান্ড উদ্দীপন নাথ এরা আপনাদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট থাকবেন। উদ্দীপন নাথ তার পাস্ট অ্যাসাইনমেন্টে হি ওয়াজ এ প্রফেসর, হি ওয়াজ টিচিং ডিজিটাল মার্কেটিং ইন এ বিজনেস স্কুল। সো এই প্রোফাইলের লোকেরা আছেন, এরা সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকবেন। হ্যাভ এ গেট লার্নিং অ্যান্ড হ্যাভ এ ফান। মানে ডিজিটাল মার্কেটিং যদি ফান মানে আনন্দ করে শেখেন, আনন্দের সঙ্গে শেখেন, তাহলে খুব মজা পাবেন জিনিসটার মধ্যে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ওয়েলকাম এগেইন। মৈত্র, ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এবার একটু রিকোয়েস্ট করব উদ্দীপন নাথকে। উদ্দীপন, তুমি ছোট করে একটু কিছু বলো। না, ইটস নট অডিয়েবল উদ্দীপন। হ্যাঁ, তোমার আনমিউট করো। Good afternoon, students. Can you hear me, all of you? Yeah, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Dr. Ali. I'm Uddipan Nath. I've been hearing about you, so finally I get to see you today. So we would be frequently interacting also. So students, তোমাদের সবাইকে বলছি তোমরা দারুণ ডিসিশন নিয়েছো এই ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সটায় অ্যাডমিশন নিয়ে। ইটস আ ওয়ান্ডারফুল ডিসিশন। লেট মি টেল ইউ ওয়াই। Because digital marketing today is invaluable, মানে priceless for any marketing professional. Why priceless? আমি খুব ছোট্ট করে বলছি, বিকজ ডক্টর আলী তোমাদেরকে পুরো জিনিসটা বোঝাবেন, পড়াবেন, শেখাবেন। You'll all get skill under his expert mentorship. But I'll tell you today why it is so important today, this learning digital marketing. Because see, most of us, even elderly people means who are senior citizens, they are also continuously on something called this. What is this? You all know this is a mobile phone, a harmless looking mobile phone, right? But it is not. It is actually inside our homes. It is actually means এটা দিয়ে আমরা পুরো পৃথিবী আমাদের হাতে কাছে চলে এসেছে। এটার মধ্যে দিয়ে, so through this the entire world, মানে এক হাতের দূরত্বের মধ্যে কিন্তু পৃথিবী আছে, রাইট? এক হাত, এর বেশি আমাদের হাত লম্বা না, এক হাত ডিস্টেন্সের মধ্যে ফোনটা আছে। এই ফোন ইজ এ মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস। তা দিয়ে আমরা মুভি দেখতে পাই, আমরা কথা বলতে পারি, আমরা মেসেজেস দিতে পারি, মানে সবকিছু করছি এটা দিয়ে। এইটা সমস্ত কমিউনিকেশন হচ্ছে। তাহলে এই মাধ্যমটাকে যে আমাকে যদি ইউজ করতে, ইফ দিস ইজ আ মিডিয়াম, এই মিডিয়াম ইজ এ ডিজিটাল মিডিয়াম, তাই না? ইলেকট্রনিক মিডিয়াম, ডিজিটাল মিডিয়াম, রাইট? whereas এই মিডিয়ামটা হচ্ছে কি একটা বই, ইটস আ ফিজিক্যাল মিডিয়াম, নন ডিজিটাল মিডিয়াম, তাই না? নিউজ পেপার ইজ আ প্রিন্ট মিডিয়াম। এটা যে ডিজিটাল মিডিয়াম, এটা একটা ডাইনামিক জিনিস, এটা সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে, এটা ইন্টারনেট দিয়ে চলে, তাই তোমাদের সবার কাছে আছে। এটা দিয়ে আমরা এই মুহূর্তে কথাবার্তা বলছি। তো এই মিডিয়ামটার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া আছে, লাইক ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন, গুগলের মতো সার্চ ইঞ্জিন আছে। এই সমস্ত কিছুকে আমরা কিভাবে ইউজ করে কাস্টমারকে আমরা কনভিন্স করতে পারি এবং আমাদের কাছে আনতে পারি, সেটা ডিজিটাল মার্কেটিং। তো তোমরা যদি এটা শেখো তাহলে কিন্তু তোমরা এই কোর্সটা এগুলো সব জানতে পারবে। এটাই আমার বলার উদ্দেশ্য। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমার এটুকু বলা ছিল। মৈত্রদা, আই এম ডান ফ্রম মাই সাইড। হ্যাঁ, বলেছি। হ্যাঁ, তোমারটা বলেছো, আমি ওটা ও রাটা বলেছি।
থ্যাংক ইউ উদ্দীপন, থ্যাংক ইউ উদ্দীপন। এবার আমি একটু রিকোয়েস্ট করব মিস্টার বাপাদিত্য ব্যানার্জি, বাপাদিত্য ফোনটা আনমিউট করতে হবে। বাপাদিত্য তুমি কিছু একটু বলার জন্য। Very good afternoon. Very good afternoon to sir. Very good afternoon to Sakir Ali, and very good afternoon to all the dear students. আমি ইংলিশ বাংলায় দুটো একটু মিক্স করে বলবো যাতে তোমাদেরও বুঝতে অসুবিধা না হয় এবং you also get a hint যে this is the medium of communication not only course but also for your professional life from now onwards. কারণ এই কোর্সগুলো আমরা করছি তো স্কিল বিল্ডিং এর জন্য, স্কিল বিল্ডিং করে আপনারা পরে চাকরি করবেন, পরে কোনো নিজেদের বিজনেস এটা কাজে লাগাবেন, সেই জন্যই আমরা এটা শিখছি। আর স্যারের কাছেও আমাদের সিইও স্যারের কাছেও আপনারা শুনেছেন এবং উদ্দীপন দার কাছেও আপনারা শুনেছেন that you people have joined this course at the very optimum time. মানে বলতে পারেন যে এই কোভিড অ্যাডভার্সারি এটা একটা অপরচুনিটি, যেটার মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল মাধ্যমেই এখন সব কাজ করব। আগে আমাদের বাড়িতে ইউরেকা ফোর্বসের লোকজন আসতো, বাড়িতে কলিং বেল টিপতো, কলিং বেল টিপে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বিক্রি করতে বলতো। আজকালকার দিনে আর ডাইরেক্ট মার্কেটিং যেটাকে বলে কিংবা ফেস টু ফেস মার্কেটিং যেটাকে বলে সেটা পুরোপুরি রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে, ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমেই আমরা আজকালকার দিনে আমরা যা কিছু সার্ভিসেস বলুন, প্রোডাক্টস বলুন, সবকিছু ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমেই আমরা কিন্তু সেল করব। তো এই জিনিসটা আজকের দিনে অপরিহার্য হয়ে যাচ্ছে। এটা আপনারা শিখে রাখলে, আর কোর্সটা যেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে সেটাতে বেস্ট জিনিস হচ্ছে ইউ উইল বি গেটিং অ্যান এসেন্স অফ এভরিথিং ইন ডিজিটাল মার্কেটিং। আমরা তো বুফেতে খেয়েছি নিশ্চয়ই সবাই, আমরা কখনো না কখনো আপনারা সবাই বুফেতে খেয়েছি। বুফেতে কি থাকে, সব আলাদা আলাদা কোর্সেস, আলাদা আলাদা ডিশেস দেওয়া থাকে। তো এটাও ঠিক সেরকম আলাদা আলাদা ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যেও যে আলাদা আলাদা ব্যাপারগুলো আছে, যেমন সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং আমরা অনেকেই করি, আজকের দিনে আমরা অনেকেই করি। আমাদের সবার ফেসবুক আছে, আমাদের সবার টুইটার অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু আমরা অজান্তে করি। ওই জিনিসটাই আমরা কত ভালোভাবে আমরা করতে পারবো, যেটা আমাদের নিজেদের ব্যবসার জন্য, নিজেদের কাজের জন্য আমরা ইউজ করতে পারি, সেইগুলো আমরা শিখবো। লিঙ্কডইন এর মাধ্যমে আমরা নেটওয়ার্ক বেস বাড়াতে পারি, আমাদের কাজের ক্ষেত্রে নতুন লোকজনদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে পারি। এই প্রত্যেকটা জিনিসই আমরা শিখবো এবং খুব ভালোভাবে, খুব কনসাইজ ভাবে শিখবো, যাতে আমরা নিজেদেরকে তৈরি করে নিতে পারি আজকের এই পরিবর্তনশীল যুগের জন্য। এইটুকুই বলার আছে। আর আপনাদের কোর্স চলাকালীন যদি আপনাদের কোনো অসুবিধা হয়, আমি আছি, উদ্দীপন দা আছে, ইউ আর অলওয়েজ ফ্রি টু গেট ব্যাক টু আস। কোনো অসুবিধা হলে কিংবা কোনো ক্লারিফিকেশন লাগলে, কোনো ফার্দার ক্লারিফিকেশন লাগলে, we are always open and we are always approachable. Thank you. Thank you, Bapaditto. So now I am introducing with you our great digital marketing trainer, Dr. Sakir Ali sir. His organization is Digitos. He is the owner of this organization, and he is the eminent trainer and industry expert in digital marketing field for last 26 years. And he is from Hyderabad. So now I am requesting Dr. Ali to continue this session with students, and session is handed over to you. But before starting, I'm telling all of you and requesting all of you, except students, so please quit from this session so that Dr. Ali and students can interact peacefully. And one thing I am mentioning you that after today's session, on 10th, today is 10th, on 14th onwards, regular classes shuru hobe, 14th onwards, daily Monday to Friday, eta hobe, ebong ratre 8টা থেকে 9:30 অবধি এই কোর্স সেশন চলবে। স্যাটারডে একটা টাইমিং আছে, সেটা হচ্ছে সকাল 11টা থেকে 12:30। আফটার ডক্টর আলি সেশন আই উইল এক্সপ্লেন ইউ ইন ডিটেলস হোয়াট উই উইল ডু। এটা রেকর্ডিং সেশনও থাকবে, রেকর্ডিং সেশনও আপনাদের কাছে পাস হবে,
আমরা দিয়ে দেবো আপনাদেরকে, যাতে আপনারা মিস করে গেলে বা ভুলে গেলে কিছু আপনারা ওটা দেখতে পারবেন। 60 আওয়ার্সের কোর্স আছে, রোস্টার থাকবে পিএসএস গুরুকুলে, কোন দিন কোনটা পড়ানো হবে সেটাও ওখানে থাকবে। সো ইন ডিটেলস উইল টেল ইউ। সো আই এম রিকোয়েস্টিং নাও ডক্টর আলী, প্লিজ কন্টিনিউ দিস সেশন। ওকে, the platform is yours and students you will interact. Okay, thank you. Over to Thank you very much. hello Dr. Ali. Yeah, thank you very much and good afternoon to one and all. It's a great privilege for me to be associated with such an eminent institution, PSA. Of course, digital is something which is essence of today, and we are at the top of iceberg only. There is a hell lot of things which is inside it, and we are just trying to touch something so that we understand the potential of digital marketing. हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अभी सिर्फ ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये बिल्कुल एक शुरुआत का दौर है जिसके अंदर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया के जरिए से कैसे हम एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, हम कौन सा स्किल सीखें जिसके जरिए से हम एम्प्लॉयबल हों, और हम कौन सा स्किल सीखें जिससे हम एम्प्लॉयबल हों, एंड सेकेंडली हम क्या क्या करें जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास जो बिजनेसेस हो रहे हैं वो भी ग्रो करें। सो इस मोमेंट पे हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि भाई सबसे पहले ये समझें कि डिजिटल ने हमारे इर्द गिर्द हमारे पूरी लाइफ को किस तरह से हमें हर एतबार से किस तरह से इसने हमें अफेक्ट कर रखा है। यानी अगर हम सोचें कि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से अगर करता हूं कि सुबह सुबह उठ के हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं, तो शायद मैं जो करता हूं वो ये है कि मैं सबसे पहले सुबह उठता हूं और अपना मोबाइल फोन देखता हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है 100% नहीं 200% कि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। और जब रात में सबसे आखिरी बार जब हम बेड पे जा रहे होते हैं एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप, हम सबसे आखिरी काम जो कर रहे होते हैं वो भी यही होता है कि हम अपने मोबाइल के ऊपर कुछ सेटिंग्स करते हैं, मैसेजेस देखते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद, और उसके बाद हम सो जाते हैं। तो मतलब ये पता चला कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत, हमारे दिन की शुरुआत मोबाइल से होता है और हमारे दिन का एंड भी मोबाइल से ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को ये समझना है कि हम अपने आप को इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर कहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल, एज ए स्टूडेंट, एज ए मार्केटर और एज ए फ्रीलांसर। यानी या तो हम जॉब में हैं, या हम जॉब करना चाहते हैं, या हम बिजनेस में हैं। ये एक ऐसा स्किल है जो सबको इसकी जरूरत है। आप एक मोटे तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे ये चीज देखें कि मुमकिन है कि एक ट्रैवल एजेंसी को इंजीनियर की जरूरत ना हो, मुमकिन है कि एक रिटेल स्टोर को इंजीनियर या डॉक्टर्स की जरूरत ना हो, बट कोई भी बिजनेस जो आज की डेट में मार्केट में बैठा है वो अगर बिजनेस करना चाहता है तो ये मस्ट है कि उसको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। तो जितने एंटरप्रेन्योर्स और जितने बिजनेसेस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, हर एक बिजनेस को आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग से अवेयर होने की जरूरत है। नाउ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जो कि हम और आप समझना चाहिए, वो ये है कि भले एक बिजनेसमैन के पास इतना वक्त नहीं होगा, इतना टाइम नहीं होगा कि वो सब कुछ सीखे और उसको इम्प्लीमेंट करे, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि ट्रेंड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को मार्केट से लेगा और वो एम्प्लॉय करेगा और उनको सैलरी भी देगा, उनको सीखने का मौका भी देगा और ये कहेगा कि भाई आप मेरे बिजनेस को बढ़ाओ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंप्यूटर स्किल होते हैं वो ये होता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं तो आपने कोई चीज प्रोग्राम कर दिया और उसका बेनिफिट, बिजनेस बेनिफिट होता है नहीं होता है, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है तो आपने जो सामान बनाया वो मार्केट में बिका या नहीं बिका, यू आर नॉट बॉदर्ड फॉर दैट।
जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां कहां आपको लोग देख रहे हैं और किन किन लोगों ने आपके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश की है, किस लोकेशन से किया है, कैलकाटा से किया है, चेन्नई से किया है या फिर बैंगलोर से किया है, कैलकाटा में किया है तो किस लोकेशन से किया है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और ये भी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स देखें, ठीक है, हमारे ऐड को हम जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो भी ये चीज से पॉसिबल है। तो पता ये चला जो दिन रात हमारे साथ रहता है वो है गूगल, और जिस चीज के ऊपर हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो है फेसबुक। तो अगर कोई एक स्टूडेंट अपने आप को इतना स्किल्ड कर ले कि फेसबुक पे ऐड कैसे डिस्प्ले होता है, फेसबुक पे ऐड मैनेजमेंट के बारे में समझ ले और गूगल के ऊपर कीवर्ड रैंकिंग के बारे में वो समझ ले, तो मेरे ख्याल से उसने तकरीबन 80% दुनिया के बारे में उसने जान लिया है और उसको कैप्चर कर सकता है। 20% इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारा सेगमेंट रूरल सेगमेंट के अंदर है, या बहुत सारे लोग इन चीजों पे उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, या सीनियर सिटीजन हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उन लोगों को इससे ज्यादा ये नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हों या ग्रोन अप पीपल हों, सब के सब आज की डेट में मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द ही अपना सब कुछ करते हैं। आप ये देखिए कि खाली टाइम में अगर किसी को सीरियल देखना है तो वो क्या करता है, वो यूट्यूब पे जाता है और अपने पुराने फेवरेट सीरियल के एपिसोड्स को ढूंढता है। अगर उसे कोई मूवी देखनी है तो वो सर्च करता है गूगल के ऊपर, या फिर वो अमेजॉन प्राइम के ऊपर या नेटफ्लिक्स के ऊपर जाके या दूसरी जगहों पे जाके वहां पे अपने पसंद की मूवी निकालता है और उसको देखता है। तो पता ये चला कि हमारी दिन की शुरुआत डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रही है, दिन का एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रहा है, और हमारी लाइफ जो इन्फ्लुएंस है वो डिजिटल मीडिया से इन्फ्लुएंस है। यानी अगर हम कोई परचेज डिसीजन भी लेना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे हैं या अमेजॉन पे हैं, आपको वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप सबसे पहले ये करते हैं कि प्रोडक्ट सर्च करने के बाद ये देखते हैं कि इसके वेंडर का रिव्यू क्या है। तो एक वेंडर के रिव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम और आप इसकी अपॉर्चुनिटी को गेज नहीं कर सकते। और इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि भाई ये ऐसे ही कोई छोट मोट कोई स्किल है। आप ये समझें कि दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में किसी को भी बिजनेस के अंदर अगर सरवाइव करना है या अपने प्रोफेशनल एक्सेलेंस, प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर एक्सेलेंस को जाना है, तो ये मस्ट है कि वो अपने डिजिटल स्किल को बढ़ाए। एक नॉर्मल सेल्स का आदमी है और एक वो आदमी है जो सेल्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपोजर रखता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपोजर रखने वाले आदमी को नॉर्मल मार्केटिंग के एक्सपोजर रखने वाले से कई गुना, यानी देयर इज अ पॉसिबिलिटी 50% ज्यादा या 100% ज्यादा वो सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और सबसे मेन चीज क्या है कि आपको अगर अपने टारगेट ऑडियंस, अगर अपने वो लोग जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उन तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको उसके लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे सर ने एक एग्जाम्पल दिया, यूरेका फोर्ब्स का एग्जाम्पल दिया, तो यूरेका फोर्ब्स हो या कोई भी डोर टू डोर मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। खासतौर से इस कोविड और इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर बहुत कम हो गया। डोर टू डोर लोग नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, उनके रिव्यूज देखते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर उनको डोर स्टेप पे डिलीवर किया जाता है और वो चले जाते हैं, और ज्यादातर पेमेंट भी ऑनलाइन हो गया है। सो देयर इज लीस्ट चांस दैट ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर ही सारा का सारा बिजनेस चल रहा है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी लेना है जहां एक एडवर्सिटी है कि बिजनेसेस डाउन हो रही हैं, लोगों के बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं, वहीं पे ऑल ऑफ यू जो स्टूडेंट के तौर पे और जो स्किल सेट सीखने के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन किए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अब जब ओपन होगा, अब जब मार्केट धीरे धीरे करके खुलना शुरू हुआ है, अनलॉकडाउन शुरू हुआ है, 4, 5 और सारे के सारे स्कूल कॉलेजेस सारे के सारे नॉर्मलाइज हो जाएंगे या मार्केट नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो फिर लोगों के पास एक डिफरेंट मार्केटिंग चैनल होगा, वो होगा डिजिटल मार्केटिंग चैनल। और आप ये समझिए कि इतनी ज्यादा तेजी से इस पर्टिकुलर स्किल सेट का डिमांड मार्केट में बढ़ने वाला है कि रिसोर्स की स्कार्सिटी हो जाएगी।
यानी ट्रेंड प्रोफेशनल्स मार्केट में कम मिलेंगे और रिक्वायरमेंट ज्यादा लोगों की होगी। तो ये मैं रियलिस्टिक फिगर में बात कर रहा हूं। और अगर कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर वो ये चाहता है कि मैं जॉब के लिए नहीं, मैं कुछ अपना करना चाहूं, तो आप फॉर श्योर आप धीरे धीरे करके, जो गूगल के अंदर कैसे एडवर्टाइज किया जाता है, फेसबुक के अंदर कैसे एडवर्टाइज किया जाता है, ट्विटर पे कैसे काम करते हैं, यूट्यूब के ऊपर कैसे मार्केट किया जाता है, जब ये सारी चीजें आप सीख लेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपके आसपास जो बिजनेसेस रन हो रहे हैं, आप उनके पास जाके उनसे बात कर सकते हैं कि आप उनके पास जाके बात कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई हम आपको एक चीपर सर्विस के तौर पे, आपको ट्रायल के तौर पे एक 2000 रुपीज, 3000 रुपीज, 5000 रुपीज के आसपास हम आपको पैकेज देते हैं और उसके अंदर हम ये सारी चीजें करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए से और अपने इस स्किल के जरिए से कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि आपको ये पता चलेगा कि कौन सा आदमी आपके प्रोडक्ट को देख रहा है और कौन सा आदमी आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। जब आप ये देखना शुरू करेंगे कि किस किस रीजन से, कौन कौन से कीवर्ड से, कौन कौन से बैनर को देख के ज्यादा लोग इंप्रेस हो रहे हैं, जब आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना शुरू करेंगे। नॉर्मली कन्वेंशनल मार्केटिंग जैसे प्रिंट मीडिया है, किसी मैगजीन में अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो आप क्या करते हैं, आप डिटेल देते हैं और वो बहुत कॉस्टली होता है। ज्यादातर कंपनीज मैगजीन या न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते और गलती से किसी वजह से अगर उस प्रिंट के अंदर कोई मिस्टेक हो गया तो आप चेंज भी नहीं कर सकते। इतना पैसा लगाया आपने, हजारों रुपए लगाए, लाख रुपए लगाया, 50,000 रुपए लगाए और गलती से कोई एक फोन नंबर गलत हो गया तो आप चेंज भी नहीं कर सकते उसको। वेयरएज डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर ऑप्शन ये है कि आप देन एंड देयर आप कैंपेन को पॉज करिए, आपने अपने चेंजेस किए और रन कर लिए। जो पैसे आपके हैं वो आपके हैं। आपको ये पता चलेगा कि आपने अगर 100 रुपए लगाए हैं तो 100 रुपए से आपको क्या बेनिफिट मिला है, अगर 5,000 रुपए लगाए हैं तो 5,000 रुपए से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा थॉरो स्टडी, थॉरो नॉलेज आप जो है इस प्लेटफॉर्म के जरिए से और इस कोर्स के जरिए से ले सकते हैं। नाउ आज मैं बहुत ज्यादा स्क्रीन शेयर करके और वो सारी चीजें करके नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट फिर भी मैं कुछ चीजें ये जरूर बताऊंगा कि जैसे आप ये देख लीजिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा एक प्लेटफॉर्म है अर्बन क्लैप। Am I audible to all? क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? Yes sir. Okay. ओके फाइन। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं ये कह रहा অসুবিধা হতে বলুন তো আমরা বড় থাকতে বলবো can we mute? मैं ये कह रहा था कि आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो आप देख लीजिए। अगर আপনারা যারা কথা বলছেন মিউট করে কথা বলুন, মিউট করুন। সুরজিৎ দাস মিউট করো তোমারটা, সুরজিৎ। I think people are singing, enjoying. Okay, not bad. ठीक है, तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म समथिंग कॉल्ड अर्बन क्लैप। अब वहां पे क्या है, वहां पे कौन लोग हैं, वहां पे आप जो नॉन प्रोफेशनल इन द सेंस नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोग हैं, जो कारपेंटर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो रेफ्रिजरेटर ठीक करने वाले हैं, जो एसी के टेक्नीशियन हैं, या जो माइक्रोवेव ठीक करते हैं, या फिर आपके घर में पेस्ट कंट्रोल करने आते हैं। तो इस तरह के सारे लोग जो आईटी से रिलेटेड नहीं है, नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, ये लोग हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं। और उनको बिजनेस कहाँ से मिलता है, लोग सर्च करते हैं और उनके सर्विसेज को बुक करते हैं एंड दे गिव द बिजनेस टू दीज पीपल। तो आप ये समझिए कि आज की डेट में एक अनएजुकेटेड आदमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से बिजनेस जनरेट कर रहा है और बिजनेस रन कर रहा है।
उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आपके सिटी में और हम सबके सिटी में कैब सर्विसेज है, जैसे ओला है, उबर है, ये सबके सिटी में है, ठीक है, आपके सिटी में भी होगा। अब इन दिनों वो कुछ अफेक्टेड है कोविड की वजह से, बट नॉर्मल सिनेरियो के अंदर ये वो लोग हैं जो कि अनएजुकेटेड, ज्यादातर जो है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, बट फिर भी वो बिजनेस उनको कहाँ से मिलता है? बिजनेस उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलता है। आप देख लीजिए कि ओला जो सबसे बड़ी एक तरह से कार पूलिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, उनके पास एक भी अपना कार नहीं है। जोमेटो या स्विगी की बात करें तो स्विगी की देख लीजिए तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बट उनके पास एक भी अपना रेस्टोरेंट नहीं है। यात्रा.com या मेक माई ट्रिप है, ये ट्रैवल की वेबसाइट है, इतनी बड़ी वेबसाइट है जो कि बहुत ज्यादा एयर टिकट्स बुक करते हैं, बट उनके पास एक भी एयरलाइंस नहीं है, कोई भी हवाई जहाज उनके पास नहीं है। उसी तरह से बुक माई ट्रिप की बात करें, अगर मेक माई ट्रिप की बात करें तो वो बहुत सारे हॉलीडेज बेचते हैं, लेकिन उनके पास कोई होटल नहीं है। ओयो एक इतना बड़ा रिटेल होटल का चेन सामने आ गया, इतने सारे होटल बुकिंग्स ओयो पे होते हैं, लेकिन उनका अपना कोई होटल नहीं है। तो ये लोग करते क्या हैं? इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, या फ्लिपकार्ट और अमेजोन को देख लीजिए, इनके पास अपना कोई स्टोर नहीं है, बट फिर भी ये हजारों हजार नहीं लाखों लाख के तादाद में वेंडर्स और सेलर्स इनके प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं और अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म ऐसा डेवलप किया जो कि बायर और सेलर को, जिनकी रिक्वायरमेंट और जो सर्विस दे रहे हैं, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और फिर लोगों को आपस में कनेक्ट किया और अपना मार्जिन अवेल करते हैं और इस तरह से वो बिजनेस करते हैं। आप और हम डिजिटल मीडिया के जरिए से हम इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म को भी के बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा, और मुमकिन है हमारे जो एमिनेंट पर्सनालिटीज यहाँ पे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं या फिर और भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन लोगों को पता होगा। बट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अगर आपको अपने स्किल से रिलेटेड फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, तो वहाँ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप अपने बारे में बता सकते हैं और लोग आपको प्रोजेक्ट देते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, 3 चीजों की बात करूंगा। आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, यानी क्लास 10th का एग्जाम देते हैं, आपके रिजल्ट्स कहाँ आते हैं? वेबसाइट पे .com पे। आप जब 10th से 12th पे जाते हैं, 12th से IIT की तरफ जाते हैं या नीट MBBS की तरफ जाते हैं या कोई दूसरा कोर्स करते हैं, आपकी काउंसलिंग और सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन हो रहा है। अगर आप ओवरसीज एजुकेशन पे जाना चाहते हैं तो वो भी सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन हो रहा है। इस चीज से आप आगे निकलते हैं, जब आपके एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने बायोडाटा को अपलोड करते हैं naukri.com पे या फिर उसी तरह से रिक्रूटमेंट की साइट पे। जब आपकी नौकरी हो जाती है तो आप फिर अपने प्रोफाइल को अपडेट करते हैं matrimony.com पे। तो naukri.com हो, matrimony.com हो, फिर houseloan.com हो या फिर creditcard.com हो, हमारी लाइफ तो .com के ऊपर ही चल रही है। और अगर हम .com यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने आप को उसमें इक्विप नहीं करेंगे, उसमें हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले ही हमारे पुराने कुलीग थे, उनसे एक पॉइंट निकल के आ रहा था। तो डिजिटल मीडिया के बारे में वो ये है कि आज की डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई है, ये कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। बट एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसके अंदर ग्रोथ नजर आ रहा है, वो इंडस्ट्री है डिजिटल प्लेटफॉर्म। वेदर वो हॉस्पिटल सेगमेंट है जो कि आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं, या फिर स्कूल और कॉलेजेस हैं जो कि अपने बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन दे रहे हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स को आपके घर तक डिलीवर कर रहे हैं, या मेडिसिन हैं जो कि आपके घर तक आ रही हैं। ये सारी चीजें आपको .com के जरिए से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से ही आप तक पहुंच रही हैं। तो इसके अंदर बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम अपने किसी एक चीज के अंदर, इसके अंदर 7-8 सेगमेंट हैं, अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर 7-8 सेगमेंट है। जैसे SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, वो गूगल के अंदर रैंकिंग देने का है। उसी के अंदर गूगल पेड ऐड है, उसी के अंदर यूट्यूब का ऐड आता है, एडसेंस आता है, यानी कैसे गूगल के ऐड के जरिए से आप पैसे कमा सकते हैं। उसी तरह से फेसबुक का ऐड आता है, ट्विटर का आता है, टिकटॉक से तो हम सबके सब नोन है। टिकटॉक से बहुत सारे वीडियोस बनाए भी होंगे और बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे भी होंगे। तो ये सारे वो प्लेटफॉर्म हैं
जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों का आज की डेट में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। यानी अगर आप एवरेजली देखें तो कम से कम नहीं कुछ तो 4 से 5 घंटा पर डे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट की अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सही ढंग से डिजिटल मार्केटिंग को सीख लिए तो आपका सामान बिकना शुरू हो जाएगा। मैं बेसिक से एग्जांपल देता हूं। कुछ कस्टमर्स हैं हमारे, बहुत ही छोटी छोटी चीजों की मैं बात कर रहा हूं। जैसे एक कस्टमर है जो कि वाटर प्यूरिफायर बेचता है। हम उसके लिए कैंपेन करते हैं, फेसबुक के ऊपर हम उसके लिए कैंपेन करते हैं और पर डे उसके लिए कम से कम 8 से 10 बिजनेस लीड जनरेट करके देते हैं। अब ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है जब उसको बिजनेस लीड मिल जाता है जिसके अंदर आदमी का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कौन सी लोकेलिटी से है, दिल्ली से है, नोएडा से है, गाजियाबाद से है या फिर इंडिया के दूसरे शहर से है, और फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उससे अगर बात किया जाए तो किस टाइम में बात किया जाए, व्हाट इज द कन्वीनियंट टाइम फॉर हिम टू टॉक, 4 बजे, 5 बजे, सुबह के 10 बजे या कितने बजे, उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है। तो ये सारी चीजें निकाल के जब हम कस्टमर्स को देते हैं तो उनका कन्वर्जन बहुत आसान हो जाता है। उनका बिजनेस लीड जो है वो बिजनेस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और इस तरह से बहुत फास्ट ट्रैक पे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अभी जैसे देख लीजिए हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मास्क हैं, जैसे होम सैनिटाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर पीपीई किट है, या इसी तरह के और भी सैनिटाइजर्स हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप छोटे छोटे से प्रोडक्ट को लेके अगर उसको अप्रोप्रिएट वे में मार्केट करना शुरू करें तो वो आप पहुंच सकते हैं। आज की डेट में हर घर में, एक एक घर के अंदर कई बॉटल्स ऑफ सैनिटाइजर यूज हो रहा है, कई फेस मास्क यूज हो रहे हैं, कई होम सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट यूज हो रहा है, सोप एंड डिटर्जेंट के यूसेज बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीजें, अगर ये प्रोडक्ट्स भी अगर आपके पास हैं और आप ये चाहते हैं कि आप एक 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सिर्फ आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो आप 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। वेयर एज हर एक कंपनी, चाहे वो कार डीलर हो, चाहे वो मोटर बाइक डीलर हो, चाहे वो ट्रेवल हो, चाहे वो ऑफिस स्टेशनरी बेच रहा हो, चाहे वो पुराना मोबाइल बेच रहा हो या पुरानी गाड़ी बेच रहा हो, हर एक आदमी को आज की डेट में उसे डिजिटल मार्केटिंग के यूसेज की जरूरत है। तो ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। यानी आप समझे कि एक तरफ तो दूसरे सेगमेंट्स के मार्केट में जॉब जा रहे हैं, लेकिन ये वो सेगमेंट है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करते हुए इंसान जॉब चला भी गया तो परवाह नहीं, वो खुद कुछ ना कुछ करके जो है अपना पॉकेट मनी अर्न कर लेता है और अपनी फैमिली को चला सकता है। सो देयर इज ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी गाइस, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज और आपको समझना है, वो ये कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ आपको छोटे छोटे जॉब्स मिलेंगे, नहीं, इसके अंदर शुरुआत भले आपकी कहीं से हो, लेकिन अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हैं और आप गूगल का सर्टिफिकेशन हो या फेसबुक का सर्टिफिकेशन हो, या आप अपने नॉलेज को ही इनहांस कर लेते हैं, ई कॉमर्स में एक्सपर्ट बन जाते हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो यकीन जाने लोग आपको, कंपनीज आपको भले इंटर्नशिप के दौरान आपको 10,000 20,000 के अराउंड आपको हायर करें, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, साल 2 साल के अंदर आप भी अक्रॉस द इंडस्ट्री 30,000 40,000 50,000 के रेंज में आप भी आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव से लेकर डायरेक्टर पोजीशन तक इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब है। इस इंडस्ट्री के अंदर एग्जीक्यूटिव से लेकर डायरेक्टर पोजीशन तक जॉब है। मेरे ख्याल से बीच बीच में कोई अनम्यूट कर लेते हैं अपने आप को, फिर आवाज आ जाती है। एनीवेज, तो ये समझने की जरूरत है कि हम अपने आप को कितना ज्यादा प्रोफिशिएंटली इक्विप कर लें। आपको इसके अंदर क्रिएटिव सर्विसेज के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि अगर आप डिजाइनिंग के अंदर अच्छे हैं, तो आपको डिजाइन के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आप राइटिंग के अंदर, यानी आपको कंटेंट, आपकी इंग्लिश अच्छी है या आपकी रीजनल लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो यू विल बी अपॉइंटेड एज ए राइटर, क्योंकि इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग में बगैर कंटेंट के कुछ नहीं हो सकता। कंटेंट इन द सेंस वो लिखा हुआ कंटेंट हो, वो इमेज हो, वो इन्फोग्राफिक्स हो या वीडियो हो, हर तरह की चीज को कंटेंट ही कहते हैं। तो अगर आप
स्टोरी टेलिंग के अंदर परफेक्ट हैं तो आपको, आपके लिए भी जॉब है। अगर आप राइटिंग के अंदर परफेक्ट हैं तो आपके लिए भी जॉब है। अगर आप बैनर्स बनाने के अंदर बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे बैनर्स और लोगोस और डिजाइन बना रहे हैं, तो आपके लिए भी जॉब है। और लोअर लेवल से लेके सीनियर मोस्ट लेवल तक के लिए आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है मार्केट में अवेलेबल है। और लोग आपको जिस तरह से कहते हैं यू विल बी ट्रीटेड एज हॉट केक इन द मार्केट, यस यू विल बी ट्रीटेड एज हॉट केक इन द मार्केट। आपको लोग पूछ पूछ कर लेंगे कि भाई मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। धीरे धीरे करके नॉर्मल मार्केटिंग के लोग ऑब्सोल्यूट हो सकते हैं अनलेस अनटिल वो अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इक्विप नहीं करें। तो हर एक आदमी को, चाहे वो प्रोफेशन के किसी लेवल पे हो, जूनियर लेवल पे हो या सीनियर मोस्ट लेवल पे हो, उसको डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, मैकेनिज्म और इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना मस्ट है, अगर वो अपने बिजनेस को या अपनी कंपनी को या अपने करियर के अंदर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल ये है। और अगर आप देखें आज जो हमारा सेशन खत्म होगा, एक 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, तो आप लोग गूगल के ऊपर जाके या naukri.com पे जाके या फिर दूसरे रिक्रूटमेंट की साइट पे जाके आप जो है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, रिक्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटीज, इस तरह की चीजें आप सर्च करें। आपको खुद समझ में आएगा कि आपने जो ये डिसीजन लिया है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को करने का, आपने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। आप भले मार्केट में लोग इस चीज को नहीं जानते हो। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, मैं आज से जब 15 साल पहले जब मैं हैदराबाद आया था, 2004 15-16 साल पहले जब मैं हैदराबाद आया था दिल्ली से, उससे पहले मैं दिल्ली में था। जब मैं हैदराबाद आया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ पे किस चीज के अंदर आपका जॉब है, तो मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग। कहते ये क्या होता है? मतलब एक आदमी जो विप्रो पे काफी सीनियर पोजीशन, विप्रो और इन्फोसिस कंपनी में काफी सीनियर पोजीशन पे था, उससे जब मेरी बात हुई तो उसने कहा ये कौन सा पोजीशन है यार डिजिटल मार्केटिंग, मैंने तो आज तक नहीं सुना। और जब हमने जाके उन कंपनीज के अंदर जब हमने डेमो देने की कोशिश की, लोगों से अप्रोच करके बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने कहा कि नो वी डोंट नीड इट। बट व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि धीरे 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 करते 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 अब डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा डिवीजन उनकी अपने इनसाइड द कंपनी हो। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक छोटा सा, अगर कोई भी एक कंपनी है जो सिर्फ बाइक्स बेच रहे हैं, ये जानिए कि बाइक बेचने वाले को भी डिजिटल मार्केटर की जरूरत है। अगर, और मैं ये बताता हूं कि कैसे कार एजेंसीज डिजिटल मार्केटर्स को यूज करते हैं। आप देखेंगे कि कार, कोई भी आदमी जब कार खरीदने जाता है तो वहां पे टेस्ट ड्राइव का ऑप्शन आता है। तो अभी क्या कर रही हैं, अब आज की डेट में खासतौर से ये पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर कंपनीज क्या कर रही हैं, वो ऑनलाइन प्रमोट कर रही हैं और जितने नए मॉडल्स के कार आ रहे हैं वो कह रहे हैं अपना स्लॉट बुक करें, ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक करें और अपना अपॉइंटमेंट दें, गाड़ी आएगी आपको पिक करेगी और फिर आप टेस्ट ड्राइव लें और उसके बाद गाड़ी आपको ड्रॉप करके चली जाएगी। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। आप ये देखिए कि जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्स बिक रही हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोज बिक रहे हैं या छोटे बड़े प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, हर एक चीज आज की डेट में फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, मतलब यू टॉक अबाउट द डिजिटल प्लेटफॉर्म, इट इज देयर। और ये सारे का लिंक्स कहाँ शेयर होता है? व्हाट्सएप पे शेयर होता है। तो व्हाट्सएप इज नो मोर अ व्हाट्सएप, इट्स एन यूनिवर्सिटी राइट नाउ, इट्स द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑन द अर्थ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द सेंस आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाता है, सही है या गलत है वो एक अलग चीज है, बट पता चल जाता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी हैं और यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, यहाँ पे थ्रेट्स भी हैं, यहाँ पे एडवांटेजेस भी हैं। तो यू एज एन स्टूडेंट हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किस लिए फिट हो और कहाँ तक फिट हो। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगी कि मैं आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि जब ये कोर्स हमारा खत्म हो उसके बाद आप एटलीस्ट, जॉब तो एक अलग चीज है, लेकिन जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएं आप, कि आप अलग अलग कंपनीज में जो डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएं। ना सिर्फ उतना बल्कि आप अपना भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उस लायक आप बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैथमेटिक्स का ट्यूटर है, एक मैथमेटिक्स के सर हैं या मैडम है जो कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाती हैं,
उनको ट्यूशन के स्टूडेंट्स चाहिए, तो आज की डेट में ट्यूशन के लिए घर घर तो जा नहीं सकते, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है कि वो अपना प्रोफाइल बनाएं और उसको प्रमोट करें। आप शायद आप उनके लिए मार्केट कर लें, आपको भी वो कुछ रेवेन्यू शेयर कर लेंगे और आपके भी फायदा हो जाएगा। मैं एक छोटी छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई प्री स्कूल है या फिर उनके पास एडमिशन का प्रॉब्लम होता है, अब जो ये पूरा साल ऐसा ही जाने वाला है, लेकिन कमिंग सेशन के अंदर आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे उनके स्टूडेंट्स के इनटेक बढ़ जाएं, आप उसमें हेल्प कर सकते हैं, आप उनके ब्रांड पोजीशनिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं, नए नए और इनोवेटिव तरह के बैनर्स आप उनके लिए बना के और मार्केट में सर्कुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ कितने तरह के फायदे हैं और कितने तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी अगर आप अपने आप को सिंसियरली और रिलीजियसली, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ रिलीजियसली, अगर आप फॉलो कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शन को, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, और पाबंदी के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से यू विल बी सरप्राइज टू सी द रिजल्ट, और खुद आप डिसाइड करेंगे कि भाई हाँ शायद आपको ये बहुत पहले करना था, या फिर चलो एक बहुत अच्छा काम हमने किया है और इसके जरिए से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और फायदा ही होगा, ना सिर्फ आपका फायदा होगा बल्कि बहुत सारे और लोगों का फायदा होगा। तो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं ले रहा हूँ, बट आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह की चीज होगी, क्या होगा, तो मैं उसके बारे में बता दूं। बिफोर हम खत्म करें, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जब हमारा 14 से रात में 8 बजे से सेशन होगा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज की कोशिश करें कि पेन एंड पेपर अपने साथ रखें, और उससे पहले आपको जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी होगा हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप पेन एंड पेपर अपने साथ रखें। कम से कम इतना करें कि कोई टर्मिनोलॉजी आपको नई टर्म नजर आ रही है या नया टर्म सुनाई दे रहा है, आप उसको नोट कर लें। जब आप उन टर्म्स को नोट करना शुरू करेंगे तो आप उस चीज के बारे में सर्च करना शुरू करेंगे और मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं उसके लिए आंसर कर सकूं। तो मैं जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, आज तो मैंने सिर्फ थ्योरी पार्ट और सिर्फ एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, और एक चीज मैं आपको बताऊं साथ ही साथ कि आप इस स्किल को सीख के सिर्फ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयबल नहीं हो सकते, क्रॉस द ग्लोब आप एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, और यहाँ रहते हुए आप पूरे वर्ल्ड के अंदर से प्रोजेक्ट उठा के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके लिए पूरी दुनिया आपके प्लेटर पे आ जाता है, और आज की डेट में हमारी पूरी दुनिया जो है वो 6 इंच के ऊपर आके रह गया है। 6 इंच इन द सेंस हमारा मोबाइल, एक हमारी पूरी दुनिया इस मोबाइल के अंदर सिमट के रह गई है, और हम 24 घंटे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम जितना ज्यादा हो सके हम रिसर्च करें, पढ़ें और अपने टाइम की यूटिलाइज करें, सो दैट ये 60 आवर्स का जो आपके लिए टाइम फ्रेम है, ये एक अपॉर्चुनिटी और बहुत ही एडवांटेजियस अपॉर्चुनिटी के साथ निकलते हैं। होप आप लोगों को जितना मैं आज बोल सकता था आज मैंने बोलने की कोशिश की, और डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, आप लोग मायूस ना हो, आप लोग हतोत्साहित ना हो कि आज मैंने आपको कुछ स्लाइड नहीं दिखाया, कुछ बताया नहीं। ये इसलिए क्योंकि आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, और आज ही के दिन मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के स्लोली मैं आपको ग्रूम करूंगा, फिर उसके बाद तो 60 आवर्स के अंदर आप खुद ये हो जाएंगे कि कहते हैं ना कि एक ऐड है पेप्सी का, ये दिल मांगे मोर, तो आप लोग खुद कहेंगे कि और चाहिए और चाहिए। एंड बिलीव मी, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक कीड़ा डेवलप हो जाए, ताकि आप सेल्फ लर्निंग मेथोडोलॉजी के अंदर चले जाएं और आपके अंदर खुद एक कीड़ा डेवलप हो जाए कि ढूंढ ढूंढ के करने की कोशिश करें। तो मैं अपने आप को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, एंड ओवर टू द एडमिन BSA ग्रुप, लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू सर। Okay, thank you, Dr. Ali. Thank you very much for your splendid speech. স্টুডেন্টরা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনাদের কিছু কোশ্চেন আছে? আদারওয়াইজ আমরা এই সেশনটা অফ করব। আমি 2-3টে জিনিস আপনাদেরকে বলে দিই। নাম্বার 1 হচ্ছে 14th onwards, 14th থেকে আমাদের রেগুলার ক্লাস স্টার্ট হচ্ছে। ডক্টর আলী উইল বি প্রেজেন্ট দেয়ার। টাইমিং হচ্ছে রাত্রি 8টা থেকে 9:30, 1.5 ঘন্টা। মানডে টু ফ্রাইডে এটা হবে। স্যাটারডে অনলি 11 AM to 12:30 PM। and second 60 hours এর কোর্স আপনাদেরকে বলেছে, প্রজেক্ট থাকবে। রোস্টার আপনারা PSA গুরুকুলে দেখতে পাবেন। PSA গুরুকুল আপনারা এন্ট্রি নিলেই আপনারা দেখতে পাবেন যে কোন দিন কোন
আপনাদের কোর্স আছে, কোনগুলো হবে, কোনগুলো লেসন আছে, সেগুলো হবে, সেগুলো সমস্ত দেখতে পাবেন আপনারা। রেকর্ডিং আছে, যে ডক্টর আলী রেকর্ড করে নেবেন, ওগুলো আপনাদের কাছে দিয়ে দেবেন, যাতে আপনাদের প্রত্যেকের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার হয়, বা যদি মিস করে গেছে, কিছু শুনতে পারেননি, অডিও ডিস্টার্ব করেছে, তারপরে আপনারা ওইটাকে রেগুলার আপনারা দেখে নিতে পারবেন। তো মোস্টলি এই হচ্ছে আজকের আমাদের সেশন। যদি কারোর কিছু কোশ্চেন থাকে সেটা আপনারা বলতে পারেন, আদারওয়াইজ আমরা আজকে সেশন অফ করব। এনি কোশ্চেন? I would like to add, I would like to suggest, आप अगर इन बच्चों को बंगाली के अंदर हो या हिंदी के अंदर हो, जैसा भी समझाएं, ये जितना ज्यादा मेरे से क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा होगा। So I'll be happy to answer them. So अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो then and there वो मुझसे पूछें कि भाई मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जितना ज्यादा वो इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा वो समझ पाएंगे, क्योंकि मैं रियल लाइफ से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ওটা আপনার লিংকের প্রবলেম হয়েছে, ওটা আমরা দেখছি। স্যার একটা কোশ্চেন। হ্যাঁ বলুন। স্যার আমার নাম স্নেহাশিস কুমার। স্যার পিএসসি গুরুকুলের ওয়েবসাইটে ওখানে বলা আছে 13 থেকে রেগুলার ক্লাস শুরু হবে, এটা কি চেঞ্জ হয়েছে? 13 না, 14 থেকে শুরু হবে। 13 সানডে আছে, 14 থেকে শুরু হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, হ্যাঁ সোম থেকে শুক্রবার। আপনি ওই আমার মনে হচ্ছে যেটা আমরা কথা বললাম। অরিন্দম কাইন্ডলি মিউট করো। ঠিক আছে, আর কারোর কোনো কোশ্চেন আছে কি? যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আর, তাহলে আমাদের 14 থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে। জয়িতা ম্যাডাম আর অরিন্দম স্যার আছে। যদি কোনো এন্ট্রি নিতে অসুবিধা হয় 14তে, তো ওদের হেল্প আপনারা নিয়ে নেবেন। ক্লাস আপনারা টাইমলি অ্যাটেন্ড করবেন, 5-10 মিনিট আগে ক্লাসে এন্ট্রি নেবেন, আর স্যারের সঙ্গে ইন্টারাকশন কিন্তু খুব ভালোভাবে করবেন। যেখানে যেখানে বুঝতে পারবেন না, আপনারা যেখানে পারবেন না, সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবেন। তো আই এক্সপেক্ট যে আপনারা সকলে খুব এনজয় করবেন এই ক্লাসটার। নতুন একটা জিনিস, আপনাদেরও ভালো লাগবে, এবং দেখবেন ক্লাস করতে করতে অনেক অপরচুনিটি আপনাদের কাছে চলে আসবে ধীরে ধীরে। তো আই উইশ ইউ অল দি বেস্ট। ঠিক আছে, আমরা তাহলে আজকের সেশন আমরা এখানেই শেষ করছি। ডক্টর আলী, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সিও স্যার, থ্যাংক ইউ ফর ইউর প্রেজেন্স। উদ্দীপন, বাপ্পাদিত্য, থ্যাংক ইউ। অল আদার পার্টিসিপেন্টস, সবাইকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। আমাদের কলিগস যারা আজকে প্রেজেন্ট ছিল, সবাইকে আমি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। ঠিক আছে, আজকের সেশন আমরা এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ডক্টর আলী। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Dr. Ali. Thank you, Dr. Ali. Thank you. It was very nice sessions on your part. So it has really set the beginning of what kind of things are Correct. coming. সবাইকে বলছি, আজকে বলে না, আজকে হচ্ছে ট্রেলার হয়ে গেল। এ তো ট্রেলার হয় মেরে দোস্ত বলে কি কথা, এক বাত হয় না। সো ট্রেলারটা দেখি আপনারা বুঝতে পারছেন যে হোয়াট ইজ কামিং ইন ওর ওয়ে। উনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় এসেনশিয়ালস আর কি। Try to extract maximum out of Dr. Ali. You will not get that kind of personality Dr. Ali is. যদি মনে হয় আমি শিখতে চাই, ওনাকে শোষণ করুন, just squeeze in and try to extract as most as possible from him. He is that kind of person যিনি নাকি এইভাবে রাজি আছেন এই হেল্প করার জন্য। আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব স্যার, আপনাকে রিকোয়েস্ট করব, আজকে এই যে আমরা অর্গানাইজ করতে পেরেছি, এর মধ্যে মিস্টার সুশান্ত নাগের অনেক একটা বড় পার্টিসিপেশন আছে, তা আপনি যদি কাইন্ডলি, উনিও আছেন লাইনে। হ্যাঁ, আর আরেকজন যিনি নেপথ্যে আছেন তিনি হচ্ছেন মিস্টার সুশান্ত নাগ, স্মার্ট এডুকার। এদের সঙ্গে আমাদের বহুদিন থেকে একটা, শুরু থেকেই স্মার্ট এডুকারের সঙ্গে আমাদের একটা কোলাবোরেশন আছে। স্মার্ট এডুকারের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে ডক্টর আলীর যোগাযোগটা হয়। তো আমি সুশান্ত বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এটা করার জন্য। So it is really a good collaboration, tripartite collaboration that we are having. So thank you very much. So 14 তারিখে তোমরা আপনারা 14 তারিখে সবাই ঢুকে যাবেন, গুরুকুলের সব অ্যাডভাইস থাকবে, আর আমার টিম তো আছেই। সো এনি প্রবলেম থাকবে, আর সেদিন প্রত্যেকদিন আমাদের তরফ থেকে কেউ না কেউ থাকবে। যদি বাংলাতে কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় একবার বললে পরে, তো যিনি থাকবে তিনি একটুখানি কোঅর্ডিনেশন করে দেবেন যে হাউ টু টেক কেয়ার। ঠিক আছে, ডোন্ট ওয়ারি। ডক্টর আলী বাংলাটা ভালো বুঝতে পারেন, সুতরাং আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা বাংলায় বলবেন। আর হিন্দিতে উনি আজকে বলেন, হিন্দিতে আপনাদের সঙ্গে ট্রানজাকশন হবে, সবকিছু হবে, কমিউনিকেশন হবে। তো হিন্দি খুব ভালো লাগলো স্যার আপনার আজকে সেশনটা, সুতরাং আপনারা সবাই এনজয় করবেন, বুঝতে পারবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you. Thank you, students. Take care. Have a good day.
থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।